Hello, friends, a very warm welcome. And in this session on Ansarkari, as we have been discussing, debating, and also taking up ideas further, let's try to see which are those themes which are very, very crucial for making you understand not only prelims but also mains and overall circumstances of the examination. That how you can really move your personality and understanding towards cracking it by keeping it really simple. तो मैंने जो असाइनमेंट्स जो क्वेश्चंस जो मैं आपको आइडियाज बोल रहा हूँ आई एम गोइंग टू चेक इन योर नोटबुक्स आई एम गोइंग टू सी एंड आस्क कि आपने वो नोट्स बनाए या आपने वो क्वेश्चंस या आपने वो आइडियाज को कैसे पोर्ट्रे किया. So this is a kind of an autonomous and a DIY, do it yourself या exercise. पहला जो टॉपिक आता है दैट इज डिजिटल स्कैम. So the article speaks about digital scam, and then it is saying that crores move in minutes across banks, state borders, officials they are watching as the same ghost accounts is used and reused. So many examples are given how people have lost their, people have lost their lifetime savings and harassment, and it is completely bringing life into turmoil. But हम क्या बात करेंगे? We have to understand that first of all, what is a digital scam? When the scam is happening online and willingly you are doing it, and obviously the person is making you believe that whatever you are doing is correct, then this scam happens. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके अगर हम आगे बात करें, तो यूके की अगर हम बात करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हैं या हमने सोचा कि यूके में तो बैंकर्स को भी लायबल बनाया जा रहा है. इट इज़ नॉट द पॉलिसी विच हैज कम अप इन इंडिया, बट क्या आप सोचते हैं कि इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए दैट इवन द बैंकिंग जो सेक्टर है या बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, दे मस्ट ऑल्सो बी मेड अकाउंटेबल एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड दे मस्ट ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस इन द सेंस कि वो पे करेंगे उनकी अगर उनकी गलती है. म्यूल अकाउंट्स हैं, गोस्ट अकाउंट्स हैं, जिसमें एक ही दिन में 5 रुपए की बात थी और मनी ट्रांसफर हो रहा है 300 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़. देन डेफिनेटली कुछ तो बात है. So rather than going into digital scam, we have to understand the prevention, we have to understand the institutional measures, we have to understand that how at the district level or how Ministry of Home Affairs or even other departments and the state center coordination is making it a meaningful exercise. जब हम बात करते हैं कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपया अगर मान लीजिए यू नो इधर से उधर हो रहा है और वो गलत हो रहा है, तो फिर नेचुरली ये बहुत ही अफसोस की और बहुत ही खतरनाक बात है. तो आपको उस एंगल से इसको देखना होगा, नॉट जस्ट व्हाट इज रिटन हियर. फाइनेंस मिनिस्टर is speaking about economic buoyancy because she is saying economic buoyancy cannot be overstated. जो है सो है. अगर हमने ग्रोथ की है तो हमने ग्रोथ की है, अगर हमने ग्रोथ की है तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं. इसका मतलब ये नहीं है दैट ऑपोजिशन इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर इज स्पीकिंग अबाउट. दैट इज वन एलिमेंट. लेकिन ये आर्टिकल अपने आप में कंप्लीटली जो है हमें एक ओवरव्यू देता है दैट how India and how our interests they are being preserved. For example, if we are going to open up our economy with respect to the United States, जिसके साथ अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, so will we be a loser? ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है. वी आर नॉट गिविंग अप आवर स्टैंड, वी आर नॉट गिविंग अप ऑन आवर those points which are very very crucial for India's national interest and people's livelihood. चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो डेयरी है, उसमें कॉशन है. सो वनरेबिलिटीज को हम बढ़ा नहीं रहे हैं बल्कि उसको कम करना है. इवन इफ यूएस सेज वी आर टैरिफ किंग, सो वी आर नॉट बॉदर्ड, वी आर नॉट रिएक्टिंग. Effective tariff rates are there. They are done with the parliament's approval, which is itself far below than the regulatory boundary. So it is not fair, and we don't agree with that. So we are lowering it in consultation with the stakeholders and also keeping in mind our growth. So the question is that India, how India will be able to react, and how India will be able to understand, and how India will be able to go get along, because US is talking about lot of non-tariff front. टैरिफ मतलब मनी, नॉन टैरिफ मतलब
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, डेटा लोकलाइजेशन है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है. सो दीज आर नॉन टैरिफ. सो we are addressing US concerns, but we are not going to give up or open up ourselves in a way which is going to ruin our growth or our future. So that is what we have been trying. In fact, we will allow US firms to come over and to participate in different processes, but not at the cost of our MSMEs or not at the cost of our, you know, what we can say, our growth. Similarly, she is also speaking about that how service exports are outpacing the world average, but the concern is there with respect to merchandise shipments. So merchandise exports, which are labor intensive, which are very, very crucial, and at the same time, we need to bring our production cost, we need to bring our overall cost, we need to bring, efficiency, we need to cut down the time. So these all things, including, uh, the inefficiency which is creeping because of so many taxes in spite of GST. That is one of the concerns, and we are working on it. So labor intensive units are given support. Similarly, is the case with respect to manufacturing, whether it is employment intensive, or it is requiring automation, like we are going for PLI. So these ideas she is discussing, which we have already discussed, and which we have already separately and also in individual parts we have discussed, and we have tried to create that approach. For example, if there is a company and it is using large number of people in the production, but now when the AI comes up and some number of people will be laid off, in that context we always believe that scaling up is the solution. We have to find innovation for that. So as a MSME automation or even use of AI is non-negotiable, but then we have to see an alternative growth pattern which we are working upon. Second thing they are talking about is that RBI monetary policy. So RBI monetary policy is not a knee-jerk reaction. It is based on some forecasting. It is based on certain predictions. That is why we are saying that even if investment-driven growth is delayed in India, but such is the case with the whole world. But then our economy is moving forward, and that is what she has been talking about, including the geopolitical issues and tensions, because there is external unpredictability. So in that context also, India is having a very strong foundation, very strong fundamentals, and India is moving forward, and private investments and capacity expansions are increasing, and investment FDI, though low, but it is also coming. And similarly is the case when we speak about the incidences of extreme poverty, it is coming down. So we have to see, we have to see and understand in the main answer writing, whether it is economics optional, whether it is general studies paper 3, or even in context of political science and international relations, apart from public administration, that people, if they see, if they follow a document, 1962 document, and say poverty has to be measured in terms of how many dollars an individual per day. So it is one criteria. So today, Government of India is empowering citizens so many ways. Free food is reaching. We are giving something in agriculture. We are giving direct benefit transfer. We are talking about, Jan Dhan Yojana. We are talking about insurance. We are talking about Ayushman Bharat. So that is why the threshold is changing, and we have to say that if even if it is US $3 per day, that's what we say. But the free food, free healthcare services, free even pink passes, the female travel is also free at many points. So these all things are helping a person or a section of society to come out of extreme poverty. So that is what we can say here moving forward. If we talk about the tale of two nationalisms, this is a very, very important and a very, very crucial piece of writing, which actually debates about the fact that what is a nation state. It is speaking about that how nation is actually, it is giving a theoretical beginning when it says that nation means people in Latin. बर्थ है, ओरिजिन है, ब्रीड है, रेस है, ट्राइब है. सो इंडियन कुल, गोत्र, वंश, इसकी तरह ही शुरू में नेशन था. नेशन वाज लाइक कुल, जैसे हम कुल की बात करते थे, हम वंश की बात करते थे, हम गोत्र की बात करते थे. एंड इन इंग्लिश, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज द पीपल और एन एथनिक कम्युनिटी विच शेयर्ड लैंग्वेज. But then John Locke and John Locke's political theory का the connotation changed to a political society. यानी पहले political angle नहीं था. पहले सिर्फ एक बात है कि पहले आपने माना कुल की तरह, गोत्र की तरह और इवन वंश की तरह.
फिर आप बोलते हैं कि अंग्रेजी में इसका मतलब था कि कैसे लोग जो है लोगों को कहा जाएगा, एथनिक कम्युनिटी को कहा जाएगा। But then John Locke bringing a political element into it, and that is how people living in a certain territory, inhabiting certain section, in certain inhabiting a certain area, and then sovereignty is exercised over that area. इससे अब आप एक फंडामेंटल शिफ्ट आ गया, जिससे आप कह सकते हैं ओरिजिनल मीनिंग जो स्टेट का तो चेंज हो गया, यानी कि इंडिया का जो एंशिएंट टाइम में हम वर्ड राष्ट्र यूज करते थे वो स्टेट की तरह हो गया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, उसने प्रायोरिटाइज किया सोवरेनिटी को इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड यहाँ पर भी आप कह सकते हो नेशनलिज्म, जो नेशन है वो अभी वो भी लेटिन वर्ड है। इसीलिए लीग ऑफ नेशन जब इस्टेब्लिश किया गया 1920 में, तो टर्म नेशन जो है वो डिफाइंड हो गया, और उसका एक, आप कह सकते हैं कि उसका एक यूनिवर्सल मीनिंग हो गया। सो दैट इज हाउ इट इज ओपनिंग अप एट द सेम टाइम। वन व्हेन वी से यूरोप, सो नेशनलिज्म वेस्टर्न यूरोप पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, उसकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, और वहाँ की ग्रोथ से जुड़ा हुआ था, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। इफ वी से मोर प्रिसाइजली ब्रिटिश दे वर रूलिंग इंडिया, सो दैट इज वाई हमारी फ्रीडम स्ट्रगल एक नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल बन जाती है। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल राष्ट्रवाद का रूप ले लेती है। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में आप कह सकते हैं कि जो है मॉडर्न नेशनल एलिमेंट्स आ गए। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप वीडी सावरकर साहब की बात करते हैं, उनके जो हिंदुत्व का एलिमेंट है वो वेस्टर्न और वो यूनिवर्सल आइडिया से नहीं आया। वो उन एंशियंट इंडिया के वैदिक, एंशियंट इंडिया के पौराणिक, एंशियंट इंडिया के सिविलाइजेशनल, एंशियंट इंडिया के उन सांस्कृतिक विचारों से आया, जिसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट बोले जा सकते हैं दैट कि अगर वो कुछ कुछ संस्कृति, कुछ व्यक्ति, कुछ समाज का हिस्सा यदि उन चीजों से मेल नहीं खाता है, तो वो हिंदू राष्ट्रवाद का पार्ट नहीं है। यानी कि पुण्य भूमि, पितृभूमि, ये कॉन्सेप्ट जो है सब पर यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होते हैं। इसीलिए जो है एक डायकोटॉमी आनी शुरू हो जाए। एक तरफ आप जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन देखते हो, और आप देखते हो कि उसके ऊपर एक उनको उनका उनका विकास होता है, उनकी ग्रोथ होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारे हिंदुत्व, जो हमारा हिंदुत्व नेशनलिज्म है उसके ऊपर बहुत ज्यादा आता है। बट जो गांधी जी के द्वारा जो मूवमेंट लीड की गई, उनका मतलब था नेशनलिज्म मतलब फ्रीडम। उनका मतलब ये नहीं था कि नेशनलिज्म मतलब हिंदू राष्ट्र ही होगा, उनका मतलब फ्रीडम है, और फ्रीडम का मतलब है कि जो भी यहाँ पर है, जो भी व्यक्ति है, वो समाज का पार्ट है, और वो हकदार है इस बात का कि उसे अपनी अपॉर्चुनिटीज मिले और वो जीवन में कुछ बड़ा कर सके। सिमिलरली आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करो, रशियन रिवॉल्यूशन की बात करो, लेकिन इंडिया का एक नेशन जो स्वरूप आ रहा था वो है ना अमेरिकन है, ना फ्रेंच है, ना रशियन है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा उनसे। क्योंकि हमारे यहाँ तो फेडरेशन है, हमारे यहाँ तो अलग अलग भाषाओं का विकास है, ये अनेक बोलियां हैं यहाँ पर, अनेक रीजन्स हैं। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरबिंदो और गांधी जी, उन्होंने जो है पूरे पूरे वर्ल्ड को एक बात बताने की कोशिश की कि किस प्रकार जो सेल्फ ऑब्सेस्ड नेशनलिज्म है वो फायदा नहीं लेके आने वाला है। उसमें एक एग्जांपल नेगेटिव हिटलर का भी हो सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस लाइट के अंदर शेप हुआ। इसीलिए हम भारत कहते हैं, भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। और 1950s और 60s में जितनी भी मतलब इंडियन टेरिटरीज थी काफी सारी, वो जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकॉग्नाइज की गई, और वो कुल मिलाकर इंडियन फेडरेशन बनाती। तो नेशनलिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और हिंदू नेशनलिज्म दोनों वेरिएंट्स पे रहेंगे। मेन पॉइंट जो डिफरेंस था वो पेट्रोटिज्म या सोवरेनिटी नहीं है, लेकिन वो है इस बात से कि समाज के सारे लोग एक जैसे हैं। समाज के सब लोगों को बराबर अधिकार है। समाज के सब लोगों को ऐसा नहीं देखना है कि भाई ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट नहीं। तो दैट इज हाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग। सो इसमें हिंदू थियोलॉजी, हिंदू फिलोसफी, एंशियंट डिबेट, डिसएग्रीमेंट, उससे सोशल टेंशन यदि बढ़ती है तो किसी कार्य का नहीं है। इसीलिए जो लोग इन चीजों को नहीं मानेंगे उनकी उनकी सस्पेक्टेड लॉयल्टी होगी। सिमिलरली हमारी जो कल्चरल ज्योग्राफी है वो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी से मैच नहीं करती है। तो हिंदुत्व राष्ट्रवाद जो है वो तो पोस्ट संस्कृत मिडिवल पीरियड को पूरे के पूरे को ऐसा मानता है कि वो डार्कनेस, वो डार्क एज थी। सल्तनत पीरियड डार्क एज है, मुस्लिम रूलर्स एंड मुगल पीरियड डार्क एज है, पर ऐसा नहीं हो सकता। तो आर्कियोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स को अगर हम देखें, तो वेदास भी जो है वो अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के उधर कुछ साइड्स, इवन मिडिल इंडिया ने पावरफुल भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की, और कबीर ने इस बात को खुद जाना कि जो भी जो भी चीजें समाज में देखी जाती हैं, जो भी किया गया है,
उसको एक हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर भक्ति मूवमेंट भी अगर वर्ण सिस्टम को चैलेंज कर रही थी, तो उसके रेजिड्यूज हमारे मॉडर्न टाइम में आते हैं, और गांधी जी और टैगोर वो इनकी बात करते हैं। और टैगोर साहब ने तो इंटरनेशनलिज्म की ही उन्होंने बात की है, कि उन्होंने तो ये भी कहा है कि जो नेशनलिज्म है वो छोटा कॉन्सेप्ट है, और पूरे विश्व में सब लोग एक दूसरे के सपोर्टर और भाई और परिवार की तरह होना चाहिए, और उसी से पूरे विश्व का भला हो सकता है। वो तो नेशनल, जो आज के समाज में जो नेशनल हम यूफोरिया की बात कर रहे हैं, उसको तो उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच से नहीं देखा। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि चैलेंज होगा, नए नए समाज के नए नए जो वर्ग ऊपर उठते हैं, और जब उनको पॉलिटिकल लीडरशिप भी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा नेशनलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म है, अगर प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड आ भी गया है, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसको भी हटाओ और सेकुलरिज्म को भी हटाओ, क्योंकि वो हमारे असली व्यक्तित्व को, असली विकास को अंडरमाइन करता है। तो पॉइंट वही है कि क्या आप एक उसमें से जो वर्जन है उसको कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दोगे? क्या दोनों वर्जन का कोई मीटिंग पॉइंट भी है? तो इसीलिए जो है हम नेशनलिज्म को बोले ना, प्रीच ना करें, बल्कि उसको हम लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करें। साथ में जो दूसरा आर्टिकल या दूसरा थीम हम जो बात कर सकते हैं, कि चाइना की जो सेंट्रलिटी है प्रोडक्शन सिस्टम में, वो आप आंख मूंद कर ये नहीं सोच सकते कि भाई अब कोई बात नहीं, मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है, बिकॉज चाइना इज वर्किंग वेरी स्मार्ट एंड ऑल्सो वेरी वेरी एट अ हाई लेवल, विच इज एक्चुअली शेपिंग थिंग्स। डील स्ट्रक कर ली हमने यूके के साथ, यूएसए के साथ हो रही है, बाकी भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है, और इवन फॉर दैट मैटर यूरोपियन यूनियन है। लेकिन क्या वो इंडिया का डीप इंटीग्रेशन कर पाएंगे सप्लाई चेन्स के साथ? क्या इंडिया एक मेजर प्रोडक्शन हब बन जाएगा? तो आप आंसर लिखिए, आप शॉर्ट नोट लिखिएगा कैसे बनेगा, और फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। आप साउथ ईस्ट एशिया में जो सप्लाई चेन्स हैं, क्या हम उसका एक वाइटल कॉक बन सकते हैं? जैसे एप्पल, एप्पल इज हैविंग अ ग्रेट प्रेजेंस इन इंडिया एंड इट इज पुटिंग एफर्ट्स लाइक एनीथिंग। बट द क्वेश्चन इज, चाइना उसको भी चाहेगा रोक दे, चाइना उसको भी चाहेगा कि किसी न किसी तरीके से वो उसको हैम्पर करें। दे आर वेरी क्लियर, बिकॉज दे आर मोनोपोलिस्टिक, दे आर वेरी डोमिनेंट। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया को अभी, चाहे वो आईफोन है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स है, चाहे फिर वो बाकी एस्पेक्ट्स हैं, अभी हवा में बात नहीं हो सकती। इसीलिए चाइना चाइना के रहते हुए इंडिया ने तो आरसीईपी भी छोड़ा, क्योंकि मालूम था डंपिंग होगी। ऑलरेडी चाइना का ट्रेड सरप्लस है, तो हम कैसे अपने आप को बचाएं भी और कैसे आगे भी बढ़ें? हाउ वी कैन डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। इट इज नॉट अबाउट जस्ट मैनेजिंग थिंग्स, इट इज अबाउट मूविंग फॉरवर्ड। सो आरसीईपी से इंडिया ने विड्रू किया, ट्रेड डेफिसिट अभी भी चाइना के साथ हमारा 53 बिलियन है, अब 99 बिलियन हो चुका है 2025 में। और यूएस भी अगर कोशिश कर रहा है कि चाइना पर रिलायंस कम हो, इंडिया में आप सोचिए कि और कई पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। बाकी तो आपके कॉमन पॉइंट्स हैं, कि चाहे फिर वो यू नो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, चाहे वो टीवी है, कार है, ये टीवी कार से सोलर पैनल्स है, जेट इंजन है। तो सबके लिए हम हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, और वो अभी कंट्रोल में ज़्यादा, जिसे हम कहेंगे, वो कंट्रोल में चाइना के हैं। तो आप इस पे सोचिए कि इंडिया की फ्यूचर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। व्हेन वी स्पीक अबाउट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो क्या है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? नो वन कैन डिफाइन इट in very very objective words. Strategic autonomy stands for the fact that a country is able to take decisions on the basis of interest, and that interest will be defining what is strategic interest. So strategic autonomy इंडिया के पास शुरू से है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया को आज की डेट में आगे लेके आई है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के कारण ही हम एक फ्रंट के ऊपर चाइना है, एक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान से हमें टू फ्रंट के ऊपर लड़ना है। इंडिया का काम सिर्फ चाइना को रिस्ट्रेन नहीं करना है, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। और जो चाइना का सिंगुलर हेजिमोनिक डोमिनेंस है, वो अपने आप वो फिर ब्रीच होगा। तो इंडिया जो है, कोई ऐसा नहीं चाहता कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें एक ही पावर आ गया है। इंडिया को ये भी नहीं चाहता कि सब लोग अपने काम छोड़कर, या सब लोग जो है सिर्फ एक जगह जबरदस्ती लग जाएं। सो इंडिया जो है वो एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म पेशेंट अप्रोच है। इफ यू सी इंडियाज रिलेशंस, प्राइम मिनिस्टर को देखिए आप, कैसे कैसे कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं, जिनको कभी यूएस और यूएसएसआर अभी पूछने वाला नहीं है। लेकिन समय सबका
आता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर मैनेजिंग एंड हाउ वी आर हैंडलिंग द थिंग्स। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पर। लेकिन अगर हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो डेटा सोवरेनिटी में भी होना चाहिए, डेटा लोकलाइजेशन भी होना चाहिए। ईयू जो है वो डिजिटल सोवरेनिटी की बात कर रहा है जीडीपीआर एक्ट के लिए, पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सर्विसेज एक्ट, डिजिटल मार्केट एक्ट का भी पीटी में आ चुका है। यूएस का भी अपना पैच वर्क है, कैलिफोर्निया सीसीपीए, HIPAA फॉर हेल्थ केयर, COPPA फॉर चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी, ग्राम रीच बिली एक्ट फॉर फाइनेंशियल डेटा। तो हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। बात है कि हम राइज कैसे करेंगे, बात है कि हम यू नो हम अपने वजूद को बिना कॉम्प्रोमाइज किए कैसे हम विकसित भारत या फिर एक यू नो ऐसी इकॉनमी बने जो कि सेल्फ रिलायंट और स्ट्रेटेजिक इकॉनमी को सबके लिए काम कर सके। पर देन इन द कमिंग फ्यूचर इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट्स अ चर्निंग एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड दैट इज व्हाई solution oriented thinking becomes very important. US decision by how decision by US Supreme Court could boost Trump citizenship order। इसमें आपको देखना यह है कि इंडियन जुडिशरी, क्योंकि इंडिया की जुडिशरी एक यूनिटरी सिस्टम है, यूनिटरी लीगल सिस्टम है। हाई कोर्ट ने इशू किया इंजंक्शन अगेंस्ट द स्टेट, बट कुछ केसेस में यू कैन से सम इट इज लिमिटेड बाय jurisdiction। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो नेशन वाइड इम्पैक्ट करता है हर रूलिंग का। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया का जो लीगल सिस्टम है यू कंपेयर विद द यूएस लीगल सिस्टम। एक क्लासीफाई करके चार्ट बनाइए, गूगल भी कीजिए, एंड देन वी कैन डिस्कस इट। चाइना का जो फर्टिलाइजर सप्लाई स्क्वीज है, जिसकी हमने पहले भी शॉर्ट में बात की है, लेकिन अगर हम बात करें तो चाइना ने पहले तो सप्लाई को कम किया, इट इट वेंट ऑन टू कट इट डाउन, एंड देन फाइनली इट वेंट ऑन टू स्क्वीज इट। एंड दैट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर डाइमोनियम फॉस्फेट। फॉस्फेट का यूज अल्टरनेटिव्स में भी होता है। जैसे अब आप मान लिए कि जो हमारे स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हैं ईवी बैटरीज हो गई, या आप कह लीजिए बाकी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी मैं कहूँगा, देन वी आर हैविंग अल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ सऊदी अरेबिया, मोरक्को, रशिया, जॉर्डन। बट देन टाइमिंग बढ़ गया, बट देन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, बट देन नया इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ा। तो ये सारी ब्राइटर साइड है। और ऊपर से when the supply was rejected, or you can say supply became less, then it went on to help in terms of making farmers dependent upon alternatives. They are seeking other alternatives, they are using better guidance provided by कृषि विज्ञान केंद्र and also by telecommunication। ये सब चीजें हमें मदद कर रही हैं। इसका मतलब ये है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। और हम ये भी चाहते हैं कि जो बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटैश नहीं चाहिए, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट के ओवर यूज के कारण भी दिक्कत थी, क्योंकि डीएपी के अंदर 46% फॉस्फेट है, 18% नाइट्रोजन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि 46% फॉस्फेट तो चाहिए ही नहीं, हमें थोड़ा कम चाहिए, क्योंकि जो डायमोनियम फॉस्फेट है या यूरिया भी मान लीजिए, जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन है, और म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट है जिसके अंदर 60% पोटेशियम की बात हो रही है। तो हमें अब ये पता लग रहा है धीरे धीरे कि हाँ, हमें जो है जो जो एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट है, और एनपीएस कॉम्प्लेक्स को हम जो है हैंडल भी कर सकते हैं। सेल भी बढ़ गई है एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स की, और उसकी वजह से इंडियन कंपनीज जो हैं, फॉर एग्जांपल कोरोमंडल इंटरनेशनल, प्रदीप फॉस्फेट्स, मैंगलुरु केमिकल्स, प्रदीप फॉस्फेट्स एंड मैंगलुरु केमिकल्स एंड सो फोर्थ, ये सबको भी एक तरीके का अब ये एक स्ट्रैटेजिक मैन्यूवरिंग मिला, मौका मिला। तो शॉर्टेज ऑफ डीएपी इज ऑल्सो गिवन ए बूस्ट टू सेल्स ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसके अंदर 16% फॉस्फोरस और 11% सल्फेट होता है। तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे। तो नए मार्केट डायनामिक्स उभर रहे हैं, और डीएपी हैज ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स बीन वर्चुअली टर्न्ड इनटू अ कंट्रोल्ड फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया हमने किया। तो सेंटर ने इनफॉर्मली फिक्स कर दिया मैक्सिमम रिटेल प्राइस डीएपी का, और साथ साथ में जो है बाकी चीजें भी की। तो इट इज अनदर थिंग दैट दैट फार्मर्स उसको ज्यादा पे करते हैं। सो क्वेश्चन यही उठता है कि भाई चाइना ने पहले कॉस्ट कट किया, उसी के पास है, और अब उसने उसको बंद किया, तो क्या वाकई हमारी न्यूज टाइट करने से, जो हमने अभी ऊपर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की, तो ये उसका एक एग्जांपल है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से ही आगे बढ़ेगा। दूसरा भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, वो भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है। जीपीएस का अगर इंटरफेरेंस होता है, पहली बात तो आपको जीपीएस पता होना चाहिए, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर साइंस एंड टेक सीरीज। जीपीएस इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या हुआ, यानी कि यू आर मूविंग, आपके जीपीएस को किसी ने स्पूफ कर दिया,
या फिर जैम कर दिया, डेलिबरेटली जैम कर दिया, साइबर अटैक हो गया, तो जहां आपको जाना था वहां आप नहीं जा पाएंगे। तो जीपीएस जैमिंग, ऑल्सो कॉल्ड जीपीएस इंटरवेंशन, इसके अंदर जैमर जो है वो स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स जो है इमिट करता है ऑन जीपीएस फ्रीक्वेंसीज टू ओवर पावर वीकर सिग्नल्स। इससे क्या होगा, जीपीएस सिस्टम की फंक्शनिंग जो है वो खराब हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, और वो लोकेशन को नहीं जो है एग्जैक्टली प्रिसाइजली आप लोकेट कर पाएंगे। दिस इज वेरी 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 डेंजरस। एविएशन सेक्टर, शिपिंग सेक्टर, एंड देन इट इज गॉट स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशंस। तो बहुत बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ब्रॉडर सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं। और एयर एंड वाटर ही नहीं, अब तो हम रोड्स की बात भी कर रहे हैं, और ट्रैफिक जैम्स हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो इमोलाइज हो सकता है। बहुत खतरनाक बात है। तो ये एक तरीके का डिवाइस है, ये एक तरीके का खेल है जो हमारे एडवर्सरी हमारे खिलाफ यूज कर सकते हैं। तो अब शिपिंग कंपनीज जो है वो मल्टी कॉन्स्टलेशन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसको यूज कर रही है। दे यूज नेविगेशन सिस्टम्स ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, एक से खतरा है दूसरा यूज कर लो साथ में। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जीपीएस हो गया, और दूसरा रशिया का ग्लोनास हो गया। डाइवर्सिफिकेशन जो है वही इसका कोर है। इसीलिए इंडिया ने भी इसरो को बोला, इसरो ने भी डेवलप किया हमारा नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। सो इंडिजिनस नाविक इज डिजाइन टू प्रोवाइड द प्रिसाइज लोकेशन। एक में गलत होगी दूसरे से आप पकड़ लेंगे। एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल इम्पैक्ट है, बिल्कुल हमने पहले भी बात की, लेकिन जब आप ये लिस्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे किस स्टेट ने क्या किया, बस इतना इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई के जो इश्यूज हैं वो नीचे अगर आप देखते हैं ध्यान से जाकर, तो आप देखिए साइड में जो अगर लिखा हुआ है पूरा कि कौन कौन से स्टेट हैं। और अगर हम समझें इस बात को कि एमएसएमई इज द सोल ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज सच, तो उसमें हमें लॉजिस्टिक्स देखना है, उसमें हमें क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी देखनी है, उसके बाद रिफॉर्म्स की बात करनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए, और इवन पॉलिसी प्रायोरिटीज भी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुल्ली कमिटेड, एंड यू नो MSMEs are actually moving ahead. So they are central to the government's agenda of socio-economic development. So ये ट्रू रिफ्लेक्शन है, ट्रू रिफ्लेक्शन है कि इंडिया कैसे अभी आगे बढ़ के कैसे इंडिया इज क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर इटसेल्फ, और एक कमेंडेबल प्रोग्रेस भी है। जबकि हम चाहते हैं कि जो भी चैलेंजेस हैं वो कम हो, और इवन एफडीआई और आए, और इवन और इन्वेस्टमेंट आए, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम आगे बढ़े। हाउ साउथ ईस्ट एशिया डिफाइज द ग्लोबल एफडीआई यूज, वही वाली बात जो अभी हमने बात की, कि साउथ ईस्ट एशिया में जितना भी एफडीआई आता है, तो एफडीआई का आना बहुत सारे फैक्टर्स पे ऊपर डिपेंड करता है। जियो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, आपकी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, आपके इकोनॉमिक रिटर्न्स, और साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि एफडीआई इन्फ्लोज जो है वो देने वाली कंट्री कौन सी है, उसके आपके रिलेशन कैसे। So outside of Southeast Asia, North America and Africa showed higher growth rate. North America was driven by FDI inflows into US, क्योंकि सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी की बात हो रही है। चिप्स जो उन्होंने बनाया था, चिप्स एक्ट, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एक्ट, वो एक इनेबलर था। तो इंडिया भी इसी तरीके से कार्य कर रहा है, इंडिया भी इनेबलिंग पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने तरीके से करना होगा। और इजी मूवमेंट अब मनी की जितनी ज़्यादा होगी, और जितना हम जितना हम रिलैक्स रहेंगे, जितना हम पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उतना हमें बेनिफिट होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, चाइना हैज सेंट मोर एफडीआई देन इट हैज रिसीव्ड इन रिसेंट ईयर, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रैटेजी, यू नो। तो इमर्जिंग मार्केट्स ने 75% ऑफ एफडीआई चाइना का लिया, और आप कह सकते हैं कि ये भी उसके उसके अपने फायदे के लिए चाइना ने जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है, तो चाइना इज हैविंग अ लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल न्यूक्लियर सेक्टर। तो यहां पर मैं आपको सिर्फ तीन बातें बताऊंगा। पहला तो सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी लॉ, इसको सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, आप उससे देखिए। यानी एक मैकेनिज्म फॉर कंपनसेटिंग विक्टिम्स फ्रॉम डैमेजेस कॉज्ड बाय न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड अलोकेटिंग एबिलिटी एंड स्पेसिफाइंग प्रोसीजर्स फॉर कंपनसेशन। इसके बिना कोई भी यहाँ आना नहीं जाएगा, इसके बिना कोई भी पावर, कोई भी ताकत नहीं आएगी इंडिया में, और वो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर पावर सेक्टर है, दे आर नॉट गोइंग टू वर्क इनटू इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। आप इसके सेक्शन 17 को देखिए। सेक्शन 17 ऑफ CLNDA, द ऑपरेटर ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, कंपनसेशन देने के बाद, न्यूक्लियर डैमेज के बाद राइट ऑफ रिकोर्स भी होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है
कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट यदि होता है तो उसके बाद जो है कैसे हुआ, क्या उसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, एंड किसकी गलती से, तो बहुत सारी चीजें क्लियर करके हमने किया है। इंडिया ने फॉरेन वेंडर्स को अलाउ तो किया है, लेकिन आप कह सकते हैं कि अगर वो वेंडर्स बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं देन थिंग्स आर गोइंग टू टेक मच मोर टाइम। सो इंटरनेशनल बेंचमार्क के साथ हमें लाना पड़ेगा, हमें भाषा और डेफिनेशन को बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर आप कह सकते हैं कि चीजें बनेंगी। क्योंकि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स अगर इंडिया में कोई भी हैं तो दे आर गोइंग थ्रू इंडिया एटॉमिक रेगुलेटर, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, और वो राइट ऑफ रिकोर्स पूछेगा किसी से भी। कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो देयर आर डेलिब्रेशंस हैं। एंड ठीक है, जो इक्विपमेंट वेंडर्स हैं उनकी लाइबिलिटी को हम कैप कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो एटॉमिक एनर्जी क्योंकि हमारा वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट सेक्टर है, और द सेट ऑफ लीगल अमेंडमेंट्स जो भी देखे जा रहे हैं वो रिफॉर्म है इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के बाद से। आप कह सकते हो कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, उसके अंदर अभी हम रिफॉर्म लेके आने की बात कर रहे हैं। करंटली जो है न्यूक्लियर पावर जनरेशन सिर्फ हमारा एनपीसीआईएल या फिर एनटीपीसी लिमिटेड के पास है। तो गवर्नमेंट ने कमिट किया है, लेजिस्लेशन पास किए हैं, एक्सप्लिसिट एश्योरेंस दिया है। और आप बहुत इंपॉर्टेंट इसको मेंस के लिए समझिए और पीटी के लिए भी समझिए। हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कैसे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम ऑपरेट करते हैं, और कैसे हम कैसे कोलैबोरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने दे हैव गिवन अनप्रेसिडेंटेड रेगुलेटरी क्लियरिंग टू हॉलटेक इंटरनेशनल बेस्ड इन कैम्पटन न्यू जर्सी दैट पोटेंशियली सेट्स इट ऑन कोर्स टू लीवरेज कमर्शियल पोटेंशियल ऑफ इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। तो इसका मतलब यही है कि अब चीज़ें बहुत जल्द तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और उस दिशा में हमें कंपनसेशन या ये सारी जो फैक्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये वो हमें ज़रूर देखना होगा। क्योंकि जो प्रोविजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था पहले से, और जो फॉरेन बॉडीज दे वर सेइंग दैट इट एक्चुअली नॉट अ फैसिलिटेटर, उसको भी हमने हटाने की बात की। इंडिया के वाइडेस्ट वन ऑफ द वाइडेस्ट टनल्स 4.89 किलोमीटर टनल इन कोटा इज द की लिंक ऑफ द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, passes through different rock masses and substrata that include sandstone, shale, siltstone, mudstone and limestone। तो आप पीटी के लिए इसको नोट करिए, पीटी के लिए आप इसको समझिए। बाकी एलिमेंट तो यही है जो हमने बात की है, कि करने वालों को बहुत बहुत नमस्कार है, बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, दे आर एक्सपर्ट्स, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से। इकोलॉजिकल रिन्यूअल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स की बात आज से नहीं, 15-20 साल से हम पढ़ रहे हैं। उसमें माधव गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट भी आई है, और वो तो वन ऑफ द अर्ली प्रोजेक्ट्स ऑफ एनआरएससी जिसकी वो बात कर रहे हैं, दैट दैट वाज टू इंटरप्रेट द 1972-75 लैंडसेट इमेजरी। आप सोचिए किस समय की बात हो रही है, यू नो। सो द नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया जो अभी हमने बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में उसके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रोल है, एग्जीक्यूशन करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो एफएसआई डाटा वो अपडेटेड होना चाहिए। और अ, आप कह सकते हैं कि अ, यदि माधव गाडगिल जी कह रहे हैं कि भाई वो ग्रीन नहीं करेगा, तो हमें कौन सी अप्रोच चाहिए? साइंस बेस्ड नेचर सेंट्रिक एंड पीपल सेंट्रिक अप्रोच को उन्होंने उसको क्यों नहीं माना? तो उन्होंने कहा कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किस तरीके से अपना अफेयर्स को मैनेज करते हैं। जैसे आप समझिए कि एज अ रिजल्ट ऑफ M.Y. घोरपड़े द देन कर्नाटका फाइनेंस मिनिस्टर बीइंग हेयर आउट बाय भास्कर वीर 1975, वीवर्स ने कहा कि भाई देयर वाज एक्सेसिव कटिंग ऑफ बैम्बू बाय द पेपर इंडस्ट्री इन द स्टेट which was adversely affecting their livelihoods. Ghorpode decided that an objective evaluation was required and asked me to undertake the task. This took me to the West Coast paper mills and Dandeli। और उसके बाद मैंडेट जो सर का था, उनका मैंडेट था बैम्बू रिसोर्सेज को ये देखना कि वो डिप्लीट तो नहीं हो गए हैं, फ्रेश रिसोर्स पोजीशन क्या है। और उन्होंने उस बात को दिया, इन्वेस्टमेंट सर्वे किया, फ्रेश वर्क किया, फील्ड वर्क किया, और फिगर्स आई। और आप ये लगा लीजिए कि वो एसेस रीअसेस कर पाए बैम्बू स्टॉक्स इन द फील्ड बिकॉज ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन डिसएग्रीगेटेड एट द टू द लेवल ऑफ द फॉरेस्ट कंपार्टमेंट्स। तो पॉइंट यही है कि
उन्होंने किया, क्योंकि उनको एक्सेस मिला और साथ में उन्होंने उस चीज़ को वर्क किया, और वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल भी है। फिर उन्होंने पीछे स्टोरी में ये भी बताया कि when सतीश धवन बिकेम चेयरमैन ऑफ इसरो, सैटेलाइट इमेजरी ऑफ अर्थ बिकेम अवेलेबल विद द लॉन्च ऑफ लैंडसैट प्रोग्राम। तो लैंडसैट प्रोग्राम जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हमारा हैदराबाद में, उन्होंने ये किया। लैंडसैट इमेजरी फॉरेस्ट कवर को एसेस करती है कंट्री के, और वो जो है वो वेरिएंस थे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स की इंफॉर्मेशन से, वो पॉसिबल जो पहले करके दिखाया था। जैसे उन्होंने देखा कि 23% ऑफ द कंट्री वाज अंडर फॉरेस्ट कवर, रिमोट सेंसिंग इमेजरी शोड दैट फॉरेस्ट कवर वाज मच लेस, ओनली 15%। तो वही जो इन्होंने पूरा केस स्टडी की तरह यहाँ समझाया है, तो वही बात है, जो ये गैप है जो मैंने आपको रीड करके पूरा समझाने की बात की। फॉर एग्जाम्पल, ग्रासिम रेयन फैक्ट्री बिगेन प्रोड्यूसिंग पल्प एंड फाइबर इन मवूर ऑन द बैंक्स ऑफ चलियार रिवर इन केरला's Kozhikode district. Management did not do any kind of pollution control measures because profitability के concern था। हुआ क्या? हाई लेवल ऑफ पॉइजनस मर्करी, लीड, कोबाल्ट, आयरन, क्रोमियम, जिंक एंड कॉपर। फैक्ट्री सप्लाइड फैक्ट्री was supplied bamboo at throwaway prices of ₹1 पर टन, जबकि मार्केट प्राइस था उस समय ₹1400 पर टन। सोचिए आप, उससे 10,000 हेक्टेयर का बेम्बू फॉरेस्ट वायनाड का डिस्ट्रॉय हो। ग्रासिम केम टू डिपेंड ऑन इक्लिप्टिस। गवर्नमेंट ने इक्लिप्टिस प्रमोट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया का अकेशिया प्लांटेशन, लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड। इससे क्या हुआ? नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन सफरिंग हो गई। तो अब हम क्या करें? Pachgaon in Maharashtra, Chandrapur district show the way. अभी इन्होंने पॉजिटिव एग्जांपल दिया। Pachgaon was assigned community forest rights under the Forest Rights Act 2006 over 1,000 hectare of land. It is exercising this right to good effect. बैम्बू सेल होती है, इनकम भी आती है, लोगों ने बैम्बू को जलाना भी बंद, तेंदुलीज को भी जलाना बंद कर दिया है। और आप कह सकते हैं कि वॉलेंटरली भी चीज़ों को साइड में कर दिया। तो पॉइंट ये है कि वे फॉरवर्ड इज अफेक्टिवली ग्रीनिंग ऑफ द वेस्टर्न घाट्स and honest implementation of Forest Right Act, assignment of community forest rights to substantial proportion of the population that has been living inside forest for ages। ये उन्होंने कुछ एग्जांपल देने की बात की। आप भी सोच सकते हैं कि इकोलॉजिकल रिवाइवल आखिर होगा तो होगा कैसे। एससीओ व्हेन आवर हॉनरेबल डिफेंस मिनिस्टर वेंट ओवर, और वहां पर बात ही नहीं हुई पहलगाम की, तो उसके बाद हमें ये समझ में आता है और हम इस बात को जानते भी हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू रिलाई ऑन मल्टीलेटरल फोरम्स टू फाइट बैटल अगेंस्ट टेरर, एंड वी हैव टू नीड रीथिंक, वी हैव टू बी स्मार्ट। वही हमने स्ट्रेटेजिक की बात की है। इंडिया को दो इल्यूजन छोड़ने होंगे, कि एक, कि भाई वो पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड में या रीजन में आइसोलेट करके पूरे वर्ल्ड को अपने पीछे रख सकते हैं, और हम ही जो है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ सेट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दे आर बोथ एग्जाम्पल्स एंड दे बोथ हैव बिकम वीकर, दैट इज वेरी ट्रू, बट देन इंडिया हैज टू बी स्मार्ट। एंड Bangladesh knows very well that if it is aligning with Pakistan, then it makes India very very uncomfortable। क्योंकि अगर दिल्ली जो है कॉन्फ्लिक्ट में लॉक हो जाता है ऑन द बोथ साइड, देन चाइना इज हैविंग अ ग्रेट एडवांटेज। तो इसीलिए हम ये नहीं मान सकते कि हमारी प्रॉब्लम्स में सारे हमारे फ्रेंड्स और पार्टनर ऑटोमेटिकली हमारा सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर है कि भाई सबसे पहले जो करंट रिजीम्स हैं ढाका और बांग्लादेश, ढाका और पाकिस्तान में भी, दे ओवर देयर वी हैव टू सी दैट हाउ बेस्ट इन अ रेशनल वे वी कैन वी कैन मेंड आवर टाइज। हमारे टाई हमने खराब नहीं किए, टाई खराब नहीं है, बट देन बांग्लादेश के केस में हमें स्ट्रेटेजिक ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि रिलीजियस पोलराइजेशन अगर वहाँ हो जाता है पॉलिटिक्स के थ्रू, देन यू नो हमारे नेबरहुड में लॉन्ग टर्म में हमारा नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बांग्लादेश जूट प्रोडक्ट्स हैव बीन कर्ब ढाका, दैट we have to take support, we have to take action in that sense। सो अभी हमने जो चर्चा की ऊपर कि किस प्रकार से हमें नेबरहुड में देखना है, ये उसी का एक एग्जांपल है। ढाका इज गेटिंग क्लोजर टू बांग्लादेश, ढाका इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना एंड ऑल्सो टू पाकिस्तान। बांग्लादेश इज नॉट अंडरस्टैंडिंग इज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। सो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जूट इट वॉज इग्नोरिंग फेयर प्रैक्टिसेस। और अगर आप बांग्लादेशी गुड्स को इंडिया में नेपाल और भूटान के थ्रू डंप करोगे तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। दैट इज वाई इंडिया हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन बांग्लादेश प्रोडक्ट्स टू बी एक्सपोर्टेड टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड ओवरसीज भी हमारे यहाँ से नहीं जाएंगे। जो कुछ होना है वो नावा शवा सी पोर्ट के थ्रू होगा। साफ्टा में जो प्रोविजन है दैट जूट फ्रॉम बांग्लादेश एंजॉय ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडिया,
बट इंडियन जूट इंडस्ट्री ने बहुत लंबे समय से बोला इट इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द डंपिंग एंड सब्सिडाइज इंपोर्ट ऑफ जूट प्रोडक्ट्स, particularly yarn, fiber, and bags from Bangladesh. So there is an evidence, there is credible evidence that Bangladesh, जो Bangladesh jute exports, they get benefit from state subsidies extended by the government of Bangladesh. तो इन कंसर्न्स को जब देखा जाए, उनके व्यवहार को देखा जाए, तो इसीलिए एडिश दैट इज वाई डीजीएफटी हैज पुट ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी। यानी आप डंप करेंगे तो उससे ज्यादा हमने ड्यूटी लगा दी है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो हियर इट इज गिवन import in terms of $138 million $138 million in financial year 2016-17। और अगर आप बात करते हो कि अगर आप उसका इम्पैक्ट क्या होता है लॉन्ग टर्म में, देन जूट प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग डाउन इन इंडिया एंड इट इज 5,000 रुपीज पर क्विंटल फॉर फाइनेंशियल 2024-25, जबकि हमारा एमएसपी है 5,335। कैसे होगा? एक वीसीएस साइकिल बन गया और मील्स रिमेन क्लोज्ड, उनके ड्यूज ही क्लियर नहीं होते हैं, वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, अंडर प्राइस्ड फिनिश्ड जूट गुड्स फ्रॉम बांग्लादेश आ जाते हैं, और उससे जो है अंडर यूटिलाइजेशन है हमारी इंडियन मिल्स की कैपेसिटी की। वही जैसे चाइना से आपके यहाँ कपड़े आ गए, वो कपड़े आपने 200 रुपये में बेच दिए, तो आपकी मिल्स क्या करेंगे? आप अपना कपड़ा कैसे बेचेंगे? बांग्लादेश ने कोई एडजस्टमेंट भी नहीं किया, एंड इट इज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स ओन बेनिफिट्स। सो रॉ जूट इंपोर्ट्स इंडिया में बांग्लादेश से, वो एडीडी के परव्यू में नहीं है। देयरफॉर जूट फार्मर्स करंटली डू नॉट एंजॉय एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम डंपिंग प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयड बाय बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स। जो इंडियन जूट सेक्टर है, वो प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन सपोर्टिंग रूरल लाइवलीहुड, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि 78% जो हमारा प्रोडक्शन है वो वेस्ट बंगाल में ही है। तो रॉ जूट इज प्रोड्यूस्ड मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय, and jute industry is providing more than 4 lakh workers livelihood. So it's a very important case study. Large number of people are engaged in the trade of jute. 90% of India's jute output, आप कह सकते हैं, is consumed domestically. गवर्नमेंट ही ले लेती है उसको। तो artificially depressed prices caused by subsidized imports have created direct negative impacts. तो इसीलिए सेफ गार्ड करना पड़ेगा और अनफेयर प्रैक्टिसेस को आवाज उठानी पड़ेगी। और बांग्लादेश एक्सपोर्टर्स एक्टिंग इन कोल्यूशन विद देयर इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑफिसेज, इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि अब हमने सोच लिया है कि जो बांग्लादेश का जूट प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट है, वो सिर्फ हम नहवा शहबा के थ्रू करेंगे, हम उसके अलावा उसको प्रमोट नहीं करेंगे। ओके, सो रॉ जूट इज ऑब्वियसली इट इज नॉट अंडर कमिंग द परव्यू ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी। सो इससे स्ट्रीमलाइन होगा, क्वालिटी चेक होंगे, मिस डिक्लेरेशन रुकेगा, उसके बाद जो है माल प्रैक्टिसेस को एक तरीके से लगाम लगेगी, सर्कमवेंटिंग नहीं होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। We have been speaking about emergency, but now here is a question that how emergency, which was proclaimed, uh, it was also result of the economic crisis, which was making up, अगर मैं 4 पॉइंट बोलूं, strong 1963, 64, 64, 65 GDP was growing beyond 6.5%। उसके बाद जो है डिक्लाइन हुआ 1965-66, इंडियन जीडीपी श्रंक बाय 2.6%। उसके बाद डिक्लाइन हुआ, और आप कह सकते हैं दैट years of severe strains were there, droughts came up, huge import of food grains, and आप कह सकते हैं इंडिया डिपेंडेंट वेरी हैविली ऑन यूएस PL 480 scheme for grain। US distributed foreign food aid, and we became biggest beneficiary। There were tension with Pakistan, which also diverted our resources। And what we can understand is that जब दो दो वॉर होंगे, पुअर हार्वेस्ट होगी, ड्राउट होगा, अनस्टेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, तो देन डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ इश्यूज। इंडिया को वेस्टर्न कंट्री से असिस्टेंस लेनी पड़ती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन हो गए, and what we can say Indian rupee भी devaluate हो रहा था। तो in the 10 years starting 1965-66 economy was averaging very low। so that is why एक फेलिंग इकोनॉमी जब रहेगी, और उसके बाद हमने कोशिश भी की कि भाई कैसे उसको ठीक करें, लेकिन एक तरफ आपकी नक्सलबारी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपका बैंकिंग का नेशनलाइजेशन होगा, प्राइवेट पर्सेस का अबॉलिशिंग होगा, इनकम टैक्स रेट हाइक होंगे,
गवर्नमेंट ने जो है मारुति की शुरुआत करने की बात की थी। सो इन सब चीजों में आप कह सकते हैं कि chaos आया, और गरीबी हटाओ की बात आई। फैमिन रूरल इंडिया में लूम कर रहा था, डोमेस्टिक अनरेस्ट फ्यूल हुआ, क्राइसिस आई, करप्शन वाज देयर, फैक्ट्रीज वर शटिंग डाउन, पीएसयूज हैं, रेलवे स्ट्राइक भी होगी, और नवनिर्माण आंदोलन गुजरात का बहुत सक्सेसफुल रहा। एंड व्हाट यू कैन से इज दैट very very difficult, a very very difficult time, because on all fronts the government was fighting. For example, uh, Indira Gandhi's prime ministers were very confident, and then ambassador to Soviet Union DP Dhar died in hospital. Then came the results of the Gujarat assembly elections, and the opposition were also getting together. So less than 2 weeks later, emergency was declared. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे RL Karandiker sir, chairman National Statistics Commission, is saying that the statistical issues related to entrance recruitment exam should be addressed. बहुत अच्छा उन्होंने बात की। और अगर वो स्टैटिस्टिकल इश्यूज को एड्रेस करेंगे तो पॉलिसी मेकिंग में बहुत अ, उसका मतलब benefit होगा, not in the immediate but in the long term also. So that is why statistical issues related to entrance and recruitment exam should be addressed. Very true. और ये एक एक्सपर्ट कमेटी ने कहा है कितने लाख स्टूडेंट देते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट हो रहा है, फेजेस में हो रहे हैं, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो उसको कैसे हम कंपेयर करें कि वी आर मेकिंग इट ए सीमलेस, फेयर एंड वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। एंड पॉलिसी मेकिंग जो है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है, प्रिसाइज पॉलिसी मेकिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। रेयर अर्थ के ऊपर हमने पहले भी चर्चा की है। इंडिया कर रहा है, रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल मोनाजाइट इन द कोस्टल बीचेस एंड इनलैंड प्लेसेस डिपॉजिट्स पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल स्मॉलर डिपॉजिट्स हैं। गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र में। सो इंडिया जो है कैसे एक्सपोर्ट करे, एक कैसे करे इंडिया, कैसे? पहली बात तो अगर हमारे पास फिफ्थ लार्जेस्ट भी हैं, तो इंडिया इज इन रिच इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स, 6.5 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेकिन वही बात है, ये इकोनॉमिकली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टू रिफाइन इट एंड टू मैन्युफैक्चर इट। मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग अगर एग्जाम्पल है, यहाँ पर इंडिया का शेयर जो है 6% है, लेकिन माइनिंग में लेस देन 1% है। इंडिया के रिसोर्सेज लीन भी हैं, उसकी ग्रेडिंग भी देखनी पड़ेगी। तो अब सब्जी एक साथ आप नहीं उगा सकते, पहले जमीन को ठीक करना पड़ेगा। प्रिपरेशन भी इसलिए आपकी 2 दिन में नहीं हो सकती। आप अगर लेवल उठा रहे हैं तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। सो इसीलिए अंडर यूटिलाइज्ड है, एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग है, रिफाइनिंग है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है। कंट्री का ह्यूज फाउंडेशन है फॉर रेयर अर्थ इकोसिस्टम थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। तो रिसर्च इनिशिएटिव्स हैं, कंप्लीट एंड टू एंड सप्लाई चेन की बात है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन टू रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें देखना होगा, उसके लिए हमें पूरा प्लानिंग करनी होगी। जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट की बात है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स रेयर अर्थ माइनिंग टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज ओनली, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं उसके अंदर, हमने पहले भी बात की। स्केल एंड स्पीड की बात है, डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप इंडिया को करनी पड़ेगी। सो दीज आर एग्जाम्पल्स गिवन ओवर हेयर। Australia is the fourth largest producer of rare earth elements, actively expanding its domestic processing capabilities. इंडिया कैसे करेगा? तो इंडिया को अपना धर्रा बदलना होगा, इंडिया को अपना चीजें देखनी होंगी। जैसे हमने ग्रीन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल मिनरल मिशन है, इसीलिए हमें रेयर अर्थ मैग्नेट मिशन की तरह काम करना होगा। और डेडिकेटेड रेयर अर्थ एलिमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब्स हमें क्रिएट करने होंगे। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। PLI स्कीम उसके साथ आ सकती है, रिसाइकलिंग की बात हो सकती है, वेंचर हो सकते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हो सकते हैं। पर देन हाउ मच ऑफ दैट विल बी फिजिबल, ये आपके आंसर में आना चाहिए। आइडिया तो ये बहुत अच्छे हैं। जैसे उसके बाद ही आप देखिए क्लॉजेज ऑन क्रिटिकल मिनरल्स विल पार्ट ऑफ FTA इंडिया कर ही रहा है। अब ये आइडिया यहाँ पर नहीं था, जो अभी अभी गवर्नमेंट कर रही है, जो अभी हमने क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जो अभी बात हमने की, ये आइडिया डायरेक्टली जो हमने ऊपर डिस्कस किया, बिकॉज द जेंटलमैन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, हर्षवर्धन अग्रवाल सर, इज अ प्रेसिडेंट फिकी एंड चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इमामी लिमिटेड, उन्होंने तो ये बात नहीं बोली उस तरीके से। RBI mandate looks unlikely to include climate change। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक आइडिया है। लेकिन uh, अगर हम रिलैक्स होके कॉमन सेंस एग्जांपल से सोचते हैं, तो इंडिया का जो RBI का जो मैंडेट है वो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस के लिए भी बना है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि RBI हैज नॉट बीन एबल टू मैनेज, चाहे वो कोविड के थ्रू भी पार करके चला गया।
तो क्लाइमेट चेंज को भी अगर हम इनडायरेक्टली बोलेंगे तो वो इसके अंदर आएगा। हमें दो पॉइंट इसमें जरूर सोचने हैं। हम पॉजिटिवली ले सकते हैं कि यस, इंडिया का लेंथी है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और सेंट्रल बैंक जो है वो स्लोली नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कॉशियसली और प्रैग्मेटिकली मूव कर रहा है। तो हमें पढ़ते पढ़ते हमें चीज़ों को उस तरीके से देखना है कि वो बहुत नेगेटिव भी ना हो, लेकिन हम सोल्यूशन भी दे पाए। ओवर काउंटिंग द आउटपुट ऑफ आवर इन्फॉर्मल सेक्टर हो सकता है, स्टेटिस्टिकल मेथड हमें ठीक करने की जरूरत है, हमें चीज़ों को देखने की जरूरत है। सो एक्यूरेसी ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिड डेटा डिपेंड्स ऑन द इनफॉर्मल सेगमेंट्स, तो वो हमें देखने पड़ेंगे कि वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी अब सेंसस आएगा, और सेंसस के साथ साथ बाकी चीज़ें भी होंगी, तो देयर इज गोइंग टू गिव अस एन इनसाइट। एंड बाकी भी सर्वेज हैं, नेशनल सैंपल सर्वे जो होते हैं, तो रूरल और अर्बन यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। तो आप सिर्फ इस चार्ट, इस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को प्लीज देखिए, और फिर हम इसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू लुक एट इट। प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स का अर्थ है दैट व्हेन द एआई इज कमिंग अप, then how we are going to make sure that we remain efficient, and we remain such smart that AI adoption जो है वो इम्पैक्ट जो अभी डाल रहा है वो कब तक इकोनॉमिक डेटा में आगे जाके दिखाई देगा। तो प्रोडक्टिविटी में अभी से इम्पैक्ट आने लगा है, बढ़ भी रहे हैं। तो रॉबर्ट सोलो नोटेड दैट आईटी वाज एवरीवेयर एक्सेप्ट इन प्रोडक्टिविटी डेटा। सो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, एंड ही इज सेइंग कि उसमें आने में अभी टाइम लगेगा। Special teams to recover high value bad loans, very, very important point. Very, very important point. Government wants public sector banks to remain alert about non-performing assets. तो देखिए आप सामने ही खुद आपको दिख रहा है पिक्चर में भी। Banks have been asked to restructure their legal teams if they have failed to secure resolutions from courts and tribunals cases being pursued under IBC. So very, very important point. Very, very important that we need to recover high value bad loans. We do not want the public money to be wasted and went away. So ये एक positive step है जिसको हमें देखना होगा। So with these ideas and perspective, I know it is very demanding, but then you must make your own notes and you must write down the keywords so that you learn and you have something imprinted in your mind, because we are putting a lot of hard work to cover these things in our courses, and this is specifically keeping in mind your needs and understandings. So Ansarkari strives for the same, and it strives that all courses must bring success to you under all circumstances. Thank you very much.